In a world where power dynamics is shifting from west to east, BRICS has emerged as a voice of global south. It is not just challenging the pre-existing dominance of G7 but also demanding for more just and multipolar world order. Hello everyone, my name is Rahul Kumar. In this lecture, we are going to study the recent developments which happened in 17th BRICS Summit, Rio, Brazil. So before we snail into it, first it is very important for us to know how this group came into existence. Okay, so let's start. We will keep this lecture bilingual, so it is helpful. So it can be helpful for both the students. Okay, so this is what we are going to study. Okay, first we will see the origin of BRICS, and then entry of South Africa, how South Africa entered into the BRICS. Earlier it was only a BRIC. Okay, हम लोग इसमें सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे कि कैसे कैसे डेवलपमेंट्स हुए. ठीक है. सेकेंड वी विल स्टडी न्यू डेवलपमेंट बैंक, देन CRA, then how the BRIC became BRICS plus, how BRICS is redefining global power dynamics, and then what are the challenges associated with BRICS. Then we will study the most important of today's lecture, that is 78th BRICS Summit 2025, which happened in Rio, Brazil. And at the end of this lecture, we are going to solve few prelims questions, and also we will see what could be the possible mains question based on this topic. Okay, so आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है. तो 2001 में दिस इज द मैन जिमो नील, इन्होंने एक टर्म को कॉइन किया. द टर्म वाज ब्रिक. ओके, उनका एक रिसर्च पेपर था जिसका नाम था बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक्स ब्रिक्स. ही वाज अ ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट who was working in a very famous investment company, Goldman Sachs. You must have heard about it. So in this research paper, he estimated that the countries like Brazil, Russia, China and India will be the dominant global economy by 2050. Okay, so it is very important for us to know that at this point of time it was just a financial and economic concept. Okay, and not a political grouping. It was not a political grouping, it was just a financial and economic concept. Okay, so हमने यहाँ पे देखा कि इसका ओरिजिन कैसे आया. आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एस नहीं है. साउथ अफ्रीका का एंट्री एक्चुअली फॉर्मल एंट्री 2011 में हुआ था, बट हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में आगे. ठीक है ना. सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आफ्टर 2001 it was the year of 2006. Okay, and on the sidelines of United Nations General Assembly, foreign ministers of these four nations, that is Brazil, Russia, India and China, these BRIC nations foreign ministers met and they decided to institutionalize their interaction. Okay, so 2006 के बाद it was 2009 when first BRIC summit happened. Okay, and it happened in Russia. All the head of the states, that is Brazil, India, Russia and China, they met in this meeting. At this point you can see 2009 president of China was Hu Jintao. I'm sorry, Hu Jintao. Okay,
Xi Jinping actually became president of China in 2013. So you can say here, you can see here Prime Minister Manmohan Singh also. So this picture was from first BRIC meeting. ओके, तो इसका जो सबसे मेन फोकस था, ठीक है ना, वो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करना था. ओके, ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनको रिफॉर्म करना था, स्पेशली आफ्टर 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस. ये 2009 था, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आप सबको पता होगा. तो इसका जो मेन एजेंडा था वो रिफॉर्म करना था डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ में, ठीक है ना. आई एम अगेन सेइंग, उस टाइम पे जो मेन एजेंडा था वो इकोनॉमिक ही था, ठीक है ना. बाद में इट बिकेम अ पॉलिटिकल ग्रुपिंग ऑल्सो. एंड सभी जो हेड ऑफ स्टेट थे उन्होंने एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का के लिए आर्ग्यू किया यहाँ पे, ठीक है, जहां पे सिर्फ डॉलर का ही डोमिनेंस ना हो, बल्कि बाकी करेंसीज का भी डोमिनेंस हो, ठीक है, या फिर बाकी करेंसीज में भी ट्रेड हो सके, ठीक है. तो हमने 2001 देखा, 2006 का डेवलपमेंट देखा, उसके बाद 2009 का भी डेवलपमेंट देखा. इसके बाद जो डेवलपमेंट होता है वो 2010, नेक्स्ट ईयर 2010. इन दिस समिट, इट वाज अ सेकंड ब्रिक समिट which happened in Brasilia, Brazil. South Africa was invited in this summit, and it was requested to join BRICS. But formally South Africa participated in the BRICS summit in 2011 only. Okay, आप सभी के मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इंडिया, स्पेशली इंडिया और चाइना ने ये इनवाइट किया साउथ अफ्रीका को इसमें ऐड होने के लिए, ठीक है ना. तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि साउथ अफ्रीका को क्यों ऐड करना था. ओके, तो इंडिया हमेशा से एडवोकेट करता आया है ग्लोबल साउथ को, ठीक है. तो साउथ अफ्रीका रिप्रेजेंट करता है ग्लोबल साउथ को, एक ये रीजन था. दूसरा, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका का बहुत डोमिनेंस है, और यू कैन से कि काफी इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिकली काफी इन्फ्लुएंस करता है, स्पेशली अफ्रीकन यूनियन एंड एसएडीसी. एसएडीसी का भी एक बार फुल फॉर्म देखेंगे. इसका फुल फॉर्म साउथ अफ्रीकन डेवलपमेंट कमेटी, आई थिंक. ओके, यू कैन चेक इट. तो इन दो रीजन्स के अलावा एक जो और रीजन थी कि साउथ अफ्रीका का जो ग्लोबल पोजीशनिंग है वो काफी इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशियन में. तो एक्चुअली चाइना पूरा अफ्रीका में अपना आउटरीच बढ़ाने के लिए साउथ अफ्रीका को ऐड करना चाह रहा था, ठीक है. इंडिया अपना ग्लोबल साउथ का कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए ऐड करना चाह रहा था, ठीक है. एंड देन उसका जो पोजीशन था इंडियन ओशियन में वो भी एक रीजन बोल सकते हैं, ठीक है ना. तो ये हमने देखा कि साउथ अफ्रीका का एंट्री कैसा हुआ, ठीक है. हम अगर आपको सीक्वेंस याद होगा तो 2001, 2006, 2009, 2010 एंड देन 11 हमने देखा इसका कि कैसे ये डेवलपमेंट्स इसके अंदर हुआ, ठीक है. देन हम देखते हैं कि आफ्टर 2011 द मोस्ट important development which happened in BRICS is the establishment of new development bank, NDB. NDB was established in the year 2014, okay, in the 6th BRICS summit. ये समिट कहां हुआ था? फोर्टलेसा ब्राजील में.
ऑल द नेशंस म्यूचुअली डिसाइडेड टू हेडक्वार्टर इन संघाई चाइना। ओके, हमें याद रखना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का हेडक्वार्टर कहां पे है? संघाई में है, चाइना में है, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कि एनडीबी का फॉर्मेशन क्यों हुआ? ठीक है, टू प्रोवाइड फंडिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन ब्रिक्स एंड अदर ग्रोइंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज। नॉट ओनली ब्रिक्स बट अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज को भी उनको इंफ्रास्ट्रक्चर में सपोर्ट करने के लिए एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इसका फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। इनिशियली $100 बिलियन के साथ में इसका फॉर्मेशन हुआ और इसको सभी नेशंस में इक्वली बांटा गया, ठीक है। यहां पे सबसे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जानना वो ये है कि इनके जो शेयर होल्डिंग्स हैं वो सभी इक्वली होल्ड करते हैं, ठीक है ना। ऐसा आप जैसे कि दूसरे लाइक WTO की हम बात करें, क्या वहां पे इक्वल शेयर होल्डिंग है? नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पे एक इसका सबसे अच्छा फीचर है कि इक्वल शेयर होल्डिंग है। नो मैटर कोई कितना भी बड़ा इकोनॉमी है, उसका शेयर होल्डिंग ऐसा नहीं है कि ज्यादा है, ठीक है ना। सभी कंट्रीज के पास में, इंडिया, ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, सभी के पास में इक्वल शेयर होल्डिंग है, ठीक है। इक्वल वोटिंग राइट्स, जिससे मतलब कि मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे हम देखेंगे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में नॉन ब्रिक्स नेशंस का भी इसमें आए। हालांकि यूएई और इजिप्ट ये तो अब ऑफिशियली इसके मेंबर हैं, लेकिन बांग्लादेश और उरुग्वे भी एनडीबी का पार्ट है, ठीक है। इंडिया हैज रिसीव्ड अ लोन फ्रॉम एनडीबी अपने मेट्रो डेवलपमेंट के लिए, हाईवे डेवलपमेंट के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए यहां से लोन ऑलरेडी ले चुका है, ठीक है। तो आपने देखा कि एनडीबी का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, सीआरए क्या है। तो उसी साल 2014 में ही कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट का स्टैब्लिशमेंट होता है, ठीक है। सेम $100 बिलियन करेंसी के साथ में। तो आप में से ये सवाल आपको ये मन में सवाल हो सकता है आया हो कि इसका पर्पस मेन क्या है, ठीक है। तो इट इज टू सपोर्ट मेंबर्स इन द टाइम्स ऑफ बैलेंस पेमेंट क्राइसिस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, टू सपोर्ट मेंबर्स इन द टाइम ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, ओके। तो आई एम श्योर कि आपके बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आया होगा कि सर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में अगर कोई सपोर्ट करता है तो वो तो आईएमएफ भी सपोर्ट करता है। यस, तो इसका जो पर्पस था फॉर्मेशन करने का, सिमिलर टू आईएमएफ इमरजेंसी सपोर्ट के, जैसे कि आईएमएफ जो सपोर्ट करता है ऐसे सिचुएशंस में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में, तो इसका फंक्शंस भी एक तरीके से सेम ही रखा गया है, ठीक है ना। तो आपने देखा कि ये इसमें न्यू डेवलपमेंट बैंक का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, ताकि जो एक हेजमनी है वेस्टर्न नेशंस का WTO में उसको कम किया जा सके, ठीक है। आईएमएफ में भी सिमिलरली जो एक वेस्टर्न कंट्रीज का जो एक डोमिनेंस है उसको कम करने के लिए हमने ब्रिक्स में सीआरए का एस्टैब्लिशमेंट किया, ओके। तो 2014 के बाद में एक जो इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है वो है ब्रिक्स प्लस का। सो
2014 इस समिट में, ये 2014 का जो समिट था कोरोना के बाद, जहां पे हेड ऑफ द स्टेट्स मिले थे, ठीक है, इस समिट में यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया एंड देन अर्जेंटीना, इन कंट्रीज को इनवाइट किया गया था इसको ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, जिसमें से ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया एंड इंडोनेशिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया 2025 में, ठीक है। दे फॉर्मली इंटर्ड इनटू द ब्रिक्स फ्रॉम 2025 दिस ईयर, बट Saudi Arabia has not finalized its membership into the BRICS yet. क्यों? ऑब्वियस सा रीजन है, सऊदी अरेबिया का जो यूएस से कनेक्शन है उसकी वजह से वो हेजिटेंट है इसको ज्वाइन करने से, ठीक है। अर्जेंटीना ने क्यों ज्वाइन नहीं किया? अर्जेंटीना में एक्चुअली इलेक्शंस हुए और वहां की गवर्नमेंट चेंज हो गई, ठीक है, और जो वहां का जो न्यू प्रेसिडेंट बने, ही इज वेरी अलाइन्ड टू यूएसए, सो he decided to opt out from the BRICS. सो अर्जेंटीना ने ज्वाइन नहीं किया। तो हमें ध्यान रखना है कि ईरान, यूएई, इजिप्ट, इथोपिया एंड इंडोनेशिया, दे आर द ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स प्लस नाउ। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हाउ ब्रिक्स इज रीडिफाइनिंग ग्लोबल पावर डायनेमिक्स। ओके, इसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट देखने की कोशिश करते हैं। पहला वी विल सी एनर्जी सिक्योरिटी पावर हाउस, हाउ इट इज एनर्जी सिक्योरिटी पावर हाउस। ओके, तो ईरान, ऑल्दो सऊदी अरेबिया भी कंफर्मेशन नहीं दिया आने के लिए, बट इनके एडिशन से, जैसे कि यूएई, जो ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन हमारा ब्रिक प्लस का हुआ है, वो टोटल ग्लोबल क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का 44% है। आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा है। इससे क्या होगा? तो इससे डायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो ब्रिक्स प्लस जो नेशंस है, वो ऑयल प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है ना, ग्लोबल एनर्जी मार्केट में। दूसरा आप देख सकते हैं कि ये हमारे इंडिया एंड चाइना के लिए ये बहुत एक एनर्जी सिक्योरिटी के रूप में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। और जनरली जो ट्रेड होता है क्रूड ऑयल का, वो डॉलर्स के फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना, बट यहां पे एम्फेसाइज किया गया है टू डी डॉलराइज ऑयल ट्रेड। ओके, ताकि वहां के लोकल करेंसीज में भी ऑयल ट्रेड को किया जा सके, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि न्यूट्रल स्पेस फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग, इसका क्या मीनिंग है? जैसे कि इंडिया और चाइना का दोनों का डोकलाम स्टैंड 2017 में हुआ, तो ब्रिक्स एक प्लेटफॉर्म उनके लिए बना जहां पे वो मिलके इसको रिजोल्व करने की कोशिश किए थे दोनों हेड ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। उसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, ठीक है ना, तो वहां पे भी ये इंश्योर करता है कि डिप्लोमेसी जो है वो कंटिन्यू रह सके, ठीक है। थर्ड, इट प्रमोट्स स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अवॉइड एक्सेसिव डिपेंडेंसी ऑन वेस्टर्न लेड प्लेटफॉर्म्स। आप यहां पे देखेंगे, मैंने कहा कि दिस इज न्यूट्रल स्पेस फॉर स्ट्रेटेजिक डायलॉग। तो जो भी वेस्टर्न लेड प्लेटफॉर्म्स है, WTO, IMF, तो यहां पे ये उनको उनकी डिपेंडेंसी पे लाइक
निर्भर ना हो ज्यादा हम, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि मल्टीपोलर वर्ल्ड जो इसका एक एजेंडा था, उसको भी ये सपोर्ट करता है कि सिर्फ एक कंट्री ही वर्ल्ड को डोमिनेट ना करे, इसके कई सारे पोल्स हो, ताकि एक बैलेंस मतलब कि वर्ल्ड में बना रहे, उसको भी ये सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे ये पावर डायनेमिक्स को रीडिफाइन करेगा। तो इंस्ट्रूमेंट फॉर मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स, ठीक है, यू कैन सी हियर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, WTO, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो इनमें अब रिफॉर्म्स की जरूरत है टाइम के साथ में, ऑल्दो चाइना नहीं चाहता इसके अंदर रिफॉर्म्स, ठीक है ना, आप सभी को पता है। लेकिन अगर ब्रिक्स प्लस अगर स्ट्रांगली इसको एडवोकेट करे तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहां पे इन सभी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म के लिए हम एडवोकेट कर सकते हैं। ठीक है, इस मतलब कि जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है, ठीक है ना, तो इनमें रिफॉर्म्स की काफी नेसेसिटी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि इमर्जिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ब्लॉक। तो मैंने स्टार्ट किया कि G7 का जो डोमिनेंस है उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए ब्रिक्स का क्या रोल है। ठीक है, तो अगेन रिपीटिंग पॉइंट है कि वेस्टर्न के इन्फ्लुएंस को डिक्लाइन करने के लिए, ठीक है, उनका अपना इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इश्यूज जो है उसको आगे लाने के लिए, अपने इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, किस कॉन्टेक्स्ट में इनइक्वालिटी, तो जो वो अंडर रिप्रेजेंट है डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है, उनको एड्रेस करने के लिए। ठीक है ना, मैंने यहां पे एक चार्ट बनाया है, उसमें आप देखेंगे तो ब्रिक्स प्लस को मैंने G7 से कंपेयर किया यहां पे। ठीक है ना, तो टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन का जो ब्रिक्स प्लस है वो 46% पॉपुलेशन है। ठीक है, ऑफ कोर्स देख सकते हैं कितना ज्यादा है, G7 ओनली 10% है। ठीक है, ऑयल प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड का ब्रिक्स प्लस जो है 44% हमने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है ना, जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी को अगर हम देखें तो 36% है। इट इज G7 इट इज ओनली 30%। ठीक है, पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी हैं और सोशलिस्ट कंट्रीज भी हैं, तो एक मिक्स्ड पॉलिटिकल सिस्टम है, यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट डेमोक्रेटिक ही हैं। ठीक है, ग्लोबल साउथ वॉइस क्या G7 में है? ऑफ कोर्स नहीं होगा, ब्रिक्स प्लस में है। तो हमने एक कंपैरिजन भी देख लिया G7 के साथ में यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द ब्रिक्स। दिस इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट, you should be very careful while I am teaching this. The most and important point is this one. ये बहुत बड़ी कमी है एक्चुअली ब्रिक्स की, कि इसके पास में परमानेंट सेक्रेटेरिएट या फिर परमानेंट कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है इसके पास में। ठीक है, तो एक्चुअली इससे होता यह है कि जब भी सबमिट होता है तो वहां पे हेड ऑफ द स्टेट्स मिलते हैं एंड दे डिसाइड कि हमें क्या करना है। जैसे कि हम इसके बाद में पढ़ेंगे कि 17th ब्रिक्स समिट में क्या क्या हुआ, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अगर कोई सीट होता परमानेंट, कोई बॉडी होती तो उसको एग्जीक्यूट कर पाती, जिससे एक कंटिन्यूटी बनी रहती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है इसका परमानेंट, जिससे ये वीकेंड पड़ जाता है। ठीक है ना, वीकेंस इंस्टीट्यूशनल कंटिन्यूटी। ठीक है, एंड डिलेस इन डिसीजन मेकिंग। अब एक बार साल में मिलते हैं, उसके बाद फिर अगले साल मिलेंगे, तो उस पर कितना स्ट्रांगली काम होगा वो इंश्योर नहीं कर पाता है। अगर ये एक परमानेंट बॉडी के रूप में होती, कहीं पे हेडक्वार्टर होता, तो वो उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती, वो सारे कंट्रीज को कोलैबोरेट करती। ठीक है, तो ये देख सकते हैं कि एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है एक्चुअली। ठीक है ना, नेक्स्ट हम देखेंगे तो
geopolitical contradictions among members. Again, this is very important. ब्रिक्स से ब्रिक्स प्लस हो गया, इस प्लस में यूएई और इजिप्ट भी आए, जिनका बहुत क्लोज एसोसिएशन है किसके साथ में, यूएस के साथ में, एंड ईरान भी आया यहां पे, और यू ऑल नो कि ईरान का क्या रिलेशन है यूएसए के साथ में। तो ये एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है ना, इसको ये पैरालाइज करेगा, ठीक है ना। जैसे कि G77 हो गया, हमारा नाम था, नाम है, तो एक्चुअली ये जैसे कि इनइफेक्टिव है, वैसे ही एक डर है कि ज्यादा एक्सपेंशन से एक्चुअली ये भी पैरालाइज ना हो जाए, ठीक है ना। तो हमने देखा कि एक्सपेंशन से इसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, ठीक है। ब्रिक्स ऑपरेट ऑन कंसेंसस मेकिंग डिसीजन स्लो। सभी कंट्रीज वहां पे मिलके डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि उनका डिसीजन ऑफ कोर्स मतलब कि थोड़ा स्लो है। इसको हमने ऊपर भी देखा कि उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई बॉडी भी हमारे पास नहीं है। तो ये कैसे मतलब कि ब्रिक्स के डिसीजंस को स्लो कर रहा है, वो भी रीजन हमने देखा। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं कि वीकनिंग इकोनॉमीज एंड इंटरनल डिस्पैरिटी। अब जैसे कि इसमें एक, अगर हम चाइना का एग्जांपल ले तो 2023 में 2023 में चाइना का जो जीडीपी था वो 5.2% से ग्रो कर रहा था, ठीक है। 2028 में इट इज प्रोजेक्टेड कि ये 3.4 पे आ जाएगा घट के, ठीक है। रसिया का जो यूक्रेन से लड़ाई है उसमें जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस हुई है, स्पेशली जो वेस्टर्न नेशंस के द्वारा उसके ऊपर सैंक्शंस है, तो ये जो प्रॉब्लम्स है एक्चुअली इट अंडरमाइंस ब्रिक्स एबिलिटी टू ड्राइव ग्लोबल इकोनॉमिक चेंजेस। जब उसके ही अपने कंट्रीज जो मेन फाउंडिंग मेंबर्स है अगर वहीं सफर कर रहे होंगे तो वो कैसे ग्लोबल इकोनॉमी में चेंज लेकर के आएंगे, ये एक सवाल हमारे मन में उठता है, ठीक है ना। अगेन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लो इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड, ठीक है। आप इस पर ध्यान देंगे तो ब्रिक नेशंस का जो ग्लोबल ट्रेड में जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो 18% के राउंड में है, बट इंट्रा ब्रिक्स ट्रेड जो है, आप जो ब्रिक्स नेशंस आपस में जो ट्रेड करते हैं, ठीक है ना, इट इज ओनली 2.2%। 2022 का जो डाटा है जस्ट 2.2%। तो डू यू रियली थिंक कि ये इफेक्टिव हो रहा है? डोंट यू थिंक कि इसको एग्जीक्यूट अच्छे से करना होगा? जो जिस पर्पस से ब्रिक्स आया वो पर्पस क्या पूरा हो रहा है हमारा? नहीं हो रहा है। हमने देखा कि इसका जो मेन एजेंडा था स्टार्टिंग में वो इकोनॉमिक एजेंडा था। अगर आप इकोनॉमिक एजेंडा पे ही काम नहीं करेंगे, क्योंकि इस पे सिर्फ 2.2% इंट्रा ब्रिक्स नेशंस का अगर ट्रेड है, तो ऑफ कोर्स इट शोज वीक इंटरनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट जो इसमें एक प्रॉब्लम है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसकी फंडिंग की। WTO, बेटर वी विल से कि वर्ल्ड बैंक, IMF, AIIB, इनके पास में जो फंडिंग है उनके कंपैरिजन में हमारा NDB के पास में फंडिंग में बहुत कमी है, ठीक है ना। तो इससे जो इसका जो एजेंडा है वो ये पूरा नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो हमने देखा कि क्या क्या चैलेंजेस एक्चुअली ब्रिक्स में है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट 17th ब्रिक्स समिट 2025। इसे हम एक पॉइंट बाय पॉइंट करके पढ़ते हैं, ठीक है ना।
फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीएससी ने कई बार पूछा है कि थीम क्या था, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि दिस ईयर्स थीम वाज स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन। ओके, तो इसको आप माइंड में रखेंगे। कहां हुआ? रियो, ब्राजील में। ठीक है, जो जिन पॉइंट्स में फेसिस रहा उनमें से पहला पॉइंट हम बोल सकते हैं कि ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स। ये नाम से ही क्लियर है, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में एक्सपेंशन की बात हुई। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एशिया से अभी का जो मतलब जो चेंजेस हैं, वहां से इंडिया को अब होना चाहिए, अफ्रीका से कोई भी कंट्री नहीं है, लैटिन अमेरिका से कोई भी कंट्री नहीं है। तो जो प्रेजेंट वर्ल्ड ऑर्डर है, क्या ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उसको रिप्रेजेंट करता है? ऑफ कोर्स नहीं करता है। तो देयर इज ए नीड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो इसकी बात हुई। उसके बाद ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन को और बढ़ाने की बात हुई वहां पे। ठीक है, और रिफॉर्म्स इन आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एंड इमर्जिंग मार्केट्स डेवलपमेंट कंट्रीज। ठीक है, सॉरी, एक्चुअली ये जो रिफॉर्म्स आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में हमने डिमांड किया, वो किस किस बात के लिए डिमांड किया? ताकि जो हमारा जो इमर्जिंग मार्केट्स है एंड जो डेवलपिंग हमारे कंट्रीज हैं, ठीक है ना, उनके ग्रोथ को इंश्योर किया जा सके। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई। ठीक है, ये पॉइंट्स हमें ध्यान देना होगा कि उन्होंने क्या एडॉप्ट किया, तो लीडर्स फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। ये पूछ सकता है क्वेश्चन में, प्रीलिम्स में ये पूछ सकता है कि लीडर्स फ्रेमवर्क डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज ये किसने एडॉप्ट किया है? ऑप्शन दे देगा, तो ये किसने किया है? तो ब्रिक्स ने ये एडॉप्ट किया है। ठीक है ना। इसमें क्या चीज बात हुई? टू मोबिलाइज क्लाइमेट रिसोर्सेज फॉर डेवलपिंग नेशन। ठीक है, डेवलपिंग नेशंस के लिए जो जो रिसोर्सेस है, क्लाइमेट रिसोर्सेस है, उसको मोबिलाइज करने की बात हुई यहाँ पे। ठीक है ना। उसके बाद एक एमओयू साइन करने की भी बात हुई, किस पे? तो ब्रिक्स कार्बन मार्केट पार्टनरशिप पे। ठीक है, जहां पे कार्बन प्राइसिंग एंड इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है, उसमें कोऑपरेट किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पीस एंड सिक्योरिटी। देखिए, जहां पे जो चीज प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, अगर हम उसी के वे में सोल्व करने की कोशिश करें तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक है ना। तो इसलिए यहां पे एक बात हुई कि ब्रिक्स सॉल्यूशन, सॉरी, अफ्रीकन सॉल्यूशंस टू अफ्रीकन प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, इन देयर ओन वे। आप सभी को पता होगा कि जो गाजा में जीनोसाइड हो रहा है, ठीक है ना, उसमें सीज फायर के लिए सभी ने आर्ग्यू किया और बोला कि टू स्टेट जो है वो एक बेटर सॉल्यूशन हो सकता है उसका। ठीक है, हमारे पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उसको सभी ने कंडेम किया। ठीक है ना, ऑल्दो चाइना कभी एक्सेप्ट नहीं करता है कि पाकिस्तान का इसमें रोल है, बट ठीक है, एक फॉर्मली दे कंडेम पहलगाम टेररिस्ट अटैक। India emphasized that the terrorism must be rejected on principle and not treated as a matter of convenience। मतलब कि इंडिया का जो स्टैंड है टेररिज्म पे, ठीक है ना, उस पे इस समिट में उसको काफी स्ट्रांगली प्रेजेंट किया। फाइनेंशियल कोऑपरेशन की अगर हम बात करें कि क्या क्या फाइनेंशियल कोऑपरेशन रही, तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इनिशिएटिव्स की बात हुई। ठीक है, क्यों? टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन यूएस डॉलर। हमने इसको देखा कि यूएस डॉलर का जो डोमिनेंस है हर
चीज़ों के ट्रेड में, चाहे वो ऑयल का हो चाहे और चीज़ों का हो, उसको एक्चुअली रिड्यूस करने की बात हुई। हालांकि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि एक्चुअली वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन डी डॉलराइजेशन फॉर नाउ। इंडिया का कंसर्न एक्चुअली ये है कि अगर हम डॉलर को अभी के टाइम पे अगर उसको हम उसके डोमिनेंस को अगर कम करते हैं, ठीक है ना, तो चाइना का जो करेंसी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, उससे इंडिया को घाटा है, ठीक है ना। तो स्ट्रैटेजिकली इंडिया ने एक तरीके से बहुत सपोर्ट नहीं किया डी डॉलराइजेशन को, ठीक है ना। ऑफ कोर्स हम अभी यूएसए के साथ भी रिलेशनशिप बहुत खराब नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा भी वहां से काफी ट्रेड्स होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे तो न्यू डेवलपमेंट बैंक में एक्सपेंशन की बात हुई, ठीक है ना। अच्छा, आपसे अगर कोई पूछ दे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में क्या सिर्फ ब्रिक्स नेशन ही है, तो ऑफ कोर्स नहीं है, अदर भी कंट्रीज यहाँ पे है, ठीक है ना। एक्चुअली एनडीबी में यूनाइटेड नेशंस के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं ना, उन सभी के लिए ये ओपन है ज्वाइन करना, ठीक है ना। और हमने देखा भी ना, जैसे कि बांग्लादेश जो है एनडीबी का पार्ट है, तो ये सिर्फ एनडीबी ब्रिक्स के लिए नहीं है, ओके। ये अदर मतलब कि सिर्फ ब्रिक्स के लिए नहीं है, ब्रिक्स के लिए भी है और प्लस अदर कंट्रीज भी इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं, ठीक है ना। लॉन्च ब्रिक्स मल्टीलेटरल गारंटी बीएमजी पायलट, ये क्या था? तो ये डिजाइन किया गया था टू डी रिस्क इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोट इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, ओके। टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल इकोनॉमी के स्पेस में अगर हम बात करें तो यहां पे कुछ टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अगर हम देखेंगे तो इसको पढ़े आप, लीडर्स स्टेटमेंट ऑन ग्लोबल एआई गवर्नेंस, ठीक है ना, ये रिलीज किया गया। अगेन प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लीडर्स स्टेटमेंट ऑन ग्लोबल एआई गवर्नेंस ये किसने रिलीज किया? तो हमारे ब्रिक्स ने किया, ओके। तो ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक एग्रीमेंट पे उन्होंने कंक्लूड किया, क्या एग्रीमेंट था? तो डाटा इकोनॉमी गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, वो ब्रिक्स स्पेस काउंसिल को, इसको जैसे कि स्पेस सेक्टर में, स्पेस को एक्सप्लोरेशन में, जैसे कि सैटेलाइट इनोवेशन हो गया, तो सभी कंट्रीज ने ब्रिक्स स्पेस काउंसिल को एस्टेब्लिशमेंट करने की बात की वहां पे, ठीक है। उसमें से इंडिया ने भी किया। इस पे मैंने क्वेश्चन फॉर्म किया है, आप थोड़ा इस पॉइंट को ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा आसान होगा, और वैसे भी ये जो पॉइंट्स है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हम लोग के लिए, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन फॉर्म होने का काफी चांसेस होते हैं, ठीक है ना। तो हमने देखा कि सभी ब्रिक्स के कंट्रीज ने ब्रिक्स स्पेस काउंसिल फॉर्मेशन करने की डिमांड की, ठीक है। हेल्थ और सोशल डेवलपमेंट सेक्टर में अगर हम देखेंगे तो दे लॉन्च अ पार्टनरशिप फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सोशली डिटरमाइंड डिजीज, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस। इस पे काफी फोकस था इस बार कि जो लो इनकम कंट्रीज है, ठीक है ना, वहां पे इसको एलिमिनेट करने की बात की गई थी यहां पे, ठीक है ना। उसके बाद आई थिंक ये पॉइंट्स काफी है, ठीक है ना। हमने देखा 70 ब्रिक्स समिट में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। विथ रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट्स इन ब्रिक्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नंबर 1, 70th BRICS summit supported the expansion of United Nations Security Council, ओके। हमने देखा भी मोर परमानेंट मेंबर्स फ्रॉम द ग्लोबल साउथ, और बहुत ऑब्वियस स्टेटमेंट है, सही है।
ठीक है ना। ब्रिक्स कंट्रीज कलेक्टिवली होल्ड मोर वोटिंग पावर इन द IMF देन द G7 नेशन। आप बताइए कि ब्रिक्स प्लस के जो कंट्रीज है, क्या वो वोटिंग पावर IMF में, मतलब कि ये तो हम पढ़ रहे हैं ना तब से कि IMF में जो है वेस्टर्न कंट्रीज का काफी ज्यादा डोमिनेंस है, तो कलेक्टिवली वो ज्यादा वोटिंग पावर कैसे IMF में रख सकते हैं, ठीक है ना। यहां से दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। अब एलिमिनेशन से क्वेश्चन को करेंगे, तो दूसरा गलत हो गया, तो थर्ड एंड सेकेंड तो आंसर नहीं हो सकता है। हमने दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, हमारे पास में A एंड D बचता है, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट। द ब्रिक्स कार्बन मार्केट पार्टनरशिप वाज लॉन्च्ड टू प्रमोट कोऑपरेशन इन emissions trading among member countries। ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले देखा ना कि कार्बन मार्केट पार्टनरशिप की बात हुई थी, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये स्टेटमेंट सही है। थोड़ा सा फोर्थ पॉइंट अगर हम जैसे कि उसको नहीं पढ़े होते, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे आप चेक करेंगे कि इंडिया अपोज द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक्स स्पेस काउंसिल साइटिंग सोवरेनिटी कंसर्न। ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट फॉर्म किया गया है, मतलब कि ये आपको कन्विंस कर रहा है कि ये स्टेटमेंट सही है। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है अभी जो जो डेवलपमेंट्स हुए 17th ब्रिक्स समिट में, आपने अगर ध्यान से नहीं पढ़ा है तो ये स्टेटमेंट बहुत कन्विंसिंग है, यहाँ पे आप फंस सकते हैं। और दोनों आंसर है, ठीक है ना, 1 और 3 भी है, 1, 3, 4 भी है, ठीक है ना। तो एक्चुअली इंडिया ने अपोज नहीं किया था, सारे कंट्रीज ने मिलके उसको सपोर्ट किया कि ब्रिक्स स्पेस काउंसिल का फॉर्मेशन किया जाए, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, वो ए होगा। फोर्थ भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैचिंग क्वेश्चंस देखे अगर हम लोग, ठीक है ना, तो बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग ब्रिक्स प्लस मेंबर्स एंड देयर स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। ओके, यूथोपिया, हेडक्वार्टर्स ऑफ द अफ्रीकन यूनियन। अगर आपको नहीं भी नॉलेज है तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। UAE, मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री, ऑफ कोर्स ये तो सही होगा। अर्जेंटीना, विथड्रॉ फ्रॉम ब्रिक्स प्लस ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन। हमने स्टार्टिंग में देखा कि अर्जेंटीना ने क्यों विथड्रॉ किया था, ठीक है ना। अगर सिर्फ सेकेंड स्टेटमेंट आपको पता होगा, जो कि आपको पता होना भी चाहिए, कि ईरान जो है वो WTO का मेंबर नहीं है, ठीक है ना। क्या है, ईरान WTO का मेंबर नहीं है। तो अगर हम सेकेंड ऑप्शन को यहां से एलिमिनेट करेंगे तो आप यहां डायरेक्टली आंसर तक पहुंच सकते हैं। यूपीएससी भी कुछ कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को फॉर्म करती है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन हम लोग मेंस के रिगार्डिंग मेंस से रिलेटेड देखते हैं कि जो 17th ब्रिक्स समिट हुआ उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा सकता है। आज हमने जो पढ़ा उसके कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। ब्रिक्स हैज evolved from an economic grouping into a strategic platform for the global south to influence global governance, ठीक है ना। ध्यान से पढ़े इसको। ब्रिक्स हैज evolved from an economic grouping into a strategic platform from the global south to influence global governance। ये क्या बोल रहा है कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ब्रिक्स जो है वो एक इकोनॉमिक ग्रुपिंग के रूप में फॉर्म हुआ था, लेकिन वो वहां से इवॉल्व होकर एक स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म बन गया। वो क्वेश्चन यही कह रहा है कि वो वहां से इवॉल्व होकर के वो एक ग्रुप बन गया जहां पे स्ट्रेटेजिक, मतलब ये एक स्ट्रेटेजिक प्लेटफॉर्म बन गया जहां पे ग्लोबल गवर्नेंस को ये इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट वही बोल रहा है। तो इसको एनालाइज करना है हमें, critically examine this transformation in the context of 17th BRICS summit and the challenges faces post expansion। हमने इसको काफी देखा अच्छे से कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकती है एक्सपेंशन से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप एक बार लिखेंगे, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट जब क्लास लेंगे तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन को भी, कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।